in het Garuda staat er hele uitgebreide hoofdstuk alleen daarover. Welke karam, welke yoni je gaat. Yoni is soort geboorte. Ja? We gaan beginnen met Guru Pranamantra en dan gaan we naar de Bhagavad Gita toe. Ja? En de Bhagavad Gita gaat gewoon over dit soort onderwerpen praten. Ja? Dan gaan we. Om Jnanamirandasya Jnananjanasalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manoabhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vande Aham Shri Guru Shri Utpat Kamalam Shri Guru Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunathanvitam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Hare Vanja Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tatom Jayamudin Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevya Bhagavate Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naishti. Kijk, van harte welkom nogmaals iedereen. We gaan gelijk daar naartoe, naar de Gita. In de Bhagavad Gita legt Krishna hierover uit. Ja? En ik ga er 1, 2, 3, 4, 5, 6 versen oplezen, heel snel. Ik ga er heel snel door. मैं 6 श्लोक पढ़ूंगा बहुत जल्दी से क्योंकि समय बहुत कम है और विषय बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी थोड़ी मुझे बताना है? भगवान कहते हैं, आप जानते हैं भगवद गीता क्या है? भगवद गीता पूर्ण है, फुलमार्क। भगवद गीता भगवान स्वयं है, भगवद गीता की पूजा होती है। अच्छा, और भगवद गीता में जो लिखा है वो ब्रह्म शब्द है, भगवान के शब्द, भगवान के वाणी प्रकृति के तीनों गुणों से परे। भगवान न झूठ है, भगवान न सत्य है। भगवान क्या है? भगवान परम सत्य है और ओकर वाणी भी परम सत्य है। जो भगवान कह दे वो होकर के ही रहेगा, चाहे कोई माने या न माने। ठीक, ये भगवद गीता के कुछ विशेषता महिमा है. Ja? Zijn de glorie van de Gita, alles wat Krishna in de Gita heeft gezegd, is niet de waarheid en ook niet de leugen, maar de allerhoogste waarheid. Krishna is de allerhoogste waarheid, ook zijn woorden is de allerhoogste waarheid. Zo gaat het uitkomen zoals Krishna gesproken heeft. Ja? Dat is de Gita. En Gita is de allerhoogste autoriteit. सबसे प्रमाणिक शास्त्र जो है वो गीता है. जब महादेव जी आकर के पूछे कि तुम कहाँ सीखे हो सब, तो बोल सकोगे जिससे तुम प्रकट हो, जिसका क्रोध तुम हो, जिसका काल तुम हो, जिसे तुम्हें आज्ञा देते हैं, वो आकर के धरती पर. महादेव जी भगवत अवतार है, भगवत के भगवान कृष्ण के एक शक्ति आवेश अवतार है, काल के रूप में आए हैं. वो कहा है, भगवान कहा यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलाम प्रतिपत्यते. भगवान कहा जो कोई सतुगुण में मरता है, देखे यहाँ भगवान इसके विषय के बारे में बोलते हैं, जो कोई सतुगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है.
Krishna zegt, wie sterft in de hoedanigheid goedheid, bereikt de zuivere, hogere planeten van de grote wijze. जिस सतुगुण में मृत्यु होता है, जे अच्छाई से जीते हैं, iemand die goed is, altijd goed gehandeld heeft, altijd goed gedragen heeft, jegens zijn mensen, jegens de dieren, jegens planten, bomen, iedereen, jegens alle levende wezens. Dat is leven in de geaardheid, goedheid. जिस सतुगुण में सभी के प्रति, सभी जीव के प्रति सत्य भाव से, सदाचार से जिया है, वो है शुद्ध, नहीं, सत्य में, यानी सतुगुण में। और वो उसका मृत्यु जो होगा तो वो देवता के लोक में जाएगा। स्पष्ट कहा। इस मूल लगता बख रही पर नहीं है, समझ में आए ना? ठीक। अब भगवान कहेंगे, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तस्मै मूढ़ा योनिस जायते। जो कोई रजगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। In Nederlands, wie sterft in de hoedanigheid hartstocht, wordt geboren onder degenen die bezighouden met resultaatgerichte activiteiten. Wat is resultaatgerichte activiteiten? पैसा के लिए काम करो, for geld. पहले पैसा तब बातचीत होगा, वही कहते हैं रजोगुण। सब कुछ पैसा, पैसा के माई पहाड़ चढ़ कहते ना, पैसा के लिए सब कुछ कर देते हैं, उसे कहते हैं भगवान रजोगुण है, resultaatgerichte activiteiten. En wie sterft in de hoedanigheid onwetendheid, je tamogun में मरता है, wordt in het dierenrijk geboren, wordt जानवर की योनि में जन्म लेता। सतोगुण की मृत्यु देवलोक, रजोगुण की मृत्यु फिर मनुष्य होगा, फिर कर्मी होगा, बनाएंगे काली काम धंधा, दिन भर रात भर काम धंधा, रजोगुण का कार्य। और जो तमोगुण में तामसी, जो पागलपन है, जो मारपीट करते हैं, चोरी करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, वो तमोगुण है। तो भगवान कहा वो जानवर की योनि में जन्म होगा उसका। Gaat naar de dierenrijk. De volgende vers. Urdhvam gacchati sattvastha madhye tisthani rajasa jaganya gunviti sthaha adho gacchati tamasaha। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः आखिरी कुछ लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो अत्यंत गर्हित यानी नीच तमोगुणी में स्थित है, वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। जो सतोगुण है देवलोक जाएंगे, जो रजोगुण है मनुष्य होगा, और जो तमोगुणी है, जो नीच पापी अधम है, वो यमलोक में जाएंगे। लोग कहते हैं कि यार यमलोक नहीं है, मैं विश्वास नहीं कि यमलोक है कि ना, भगवान कहा है भगवद गीता में, कई बार भगवान कहा कि यमलोक है। In Nederland, zij die zich in de hoedanigheid goedheid bevinden, gaan geleidelijk omhoog naar de hogere planeten. Degenen die in de hoedanigheid hartstocht leven op aardse planeten, en personen in weerzinwekkende hoedanigheid onwetendheid dalen af naar de helse planeten। पागलपन, ये जो ड्रग्स मारपीट करते हैं, ये जितने नेता है ना, सब उधरी जाए, उसके लिए व्यवस्था होगी। बलास्टिंग लेकर के अत्याचार करते सब हो जाएगा। आगे, तान अहम द्विशतः कुर्वाम संसारेषु नराधमम क्षिपाम्यम अजस्रियम अशुद्धान आश्रुवेषु योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम यानी नीच है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनि में भवसागर में डालता रहता हूं। Zij die haatdragend en wreed zijn, de laagste onder de mensen, werp ik onophoudelijk in het oceaan van een materieel bestaan, in allerlei demonische levensvormen। देखिए भगवान ये कहे, degene die हाथ heeft, हाथ यानी मात्सर्य यानी जलन, ईर्षा, ये नरक के द्वार है। अभी हम जब समय मिलेगा तो हम बताएंगे भागवत के माध्यम से कौन कौन
भावना और कर्म तुम्हें कहां ले जाएगा, क्योंकि समस्त सृष्टि कर्म पर निर्धारित है। Dus कर्म gaat bepalen waar je naartoe gaat. Hè? आगे आसुरीम योनि आपना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य वह कुंतये ततो यान्ति अधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम योनि को प्राप्त होते हैं। जो बहुत नीच गर्हित है, जो बहुत पाप करते हैं, वो भगवान को कभी नहीं प्राप्त करेंगे। गिरते 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 जाएंगे एकदम चींटी तक। चींटी भी एक योनि होगा, वृक्ष की योनि, स्थावर योनि, पहाड़, वृक्ष, पेड़ पौधे, ये सब भी जीवात्मा है। ये सब पाप कर्मों से होता है। Degenen die heel erg zondig zijn, gaan hele vreemde, enge, wrede lichamen gaan ze krijgen. Krishna zegt, omdat ze herhaaldelijk demonische levensvorm geboren worden, o zoon van Kunti, kunnen zulke personen me nooit benaderen. Geleidelijk aan dalen ze af tot het meest verachtelijke bestaan. Dan नीचे अंधकार में गिर जाएगा। और भगवान कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान दुख सुख से परे है ना। वो आनंद में वो बांसुरी बजा करके नाचते हैं रात दिन वहां गोलोक में। जीव के स्वतंत्रता मिला। Ja, jullie hebben een kleine onafhankelijkheid gekregen. Krijgen jullie mijn app? Ik had iets gestuurd, iets heel moois. हाँ, गुरु महाराज कहा है कि भगवान कहा है तुम नरक जा सकते हो, तुम स्वर्ग भी जा सकते हो, परंतु तुम मेरे पास गोलोक में आ सकते हो। देखिए कहा भगवान, तुम नरक जा सकते हो, तुम पृथ्वी जा सकते हो, तुम स्वर्ग भी जा सकते हो। इसका मतलब भगवान माना है। भगवान कहा तुझे मेरे पास आओगे तो गोलोक आ सकेंगे। तो भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक में, वैकुंठ में। देखिए भगवान स्पष्ट कहा तुम जाओ चाहे जहां जाओ, ये तुम्हारे हाथ में। बार वेली नथु है खामा कृष्ण स्मिदार मावारिस कृष्णा और आनंद और भक्त zijn, daar is Krishna। महाराज had heel mooi gezegd, ja? Nou, ये नरक के 3 द्वार होते हैं, zijn 3 poorten naar de hel toe। Dat is Krishna nu। त्रिविधम नरकेशेयधम द्वारम नाशनम आत्मनः। daar komt hij, आ रहा है। काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्रयम त्वजत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। zijn 3 poorten die tot deze hel leiden। Daar begint hij: lust, woede en hebzucht। Ieder verstandige mens moet deze 3 opgeven, omdat ze tot de degradatie van de ziel leiden। आप समझ गए? काम, क्रोध और लोभ, परंतु 3 अभी और है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इल्यूसी, मद इस पागलपन और अहंकार, और एक और है मात्सर्य। मात्सर्य हाथ एंड जलूसी। भगवान 3 कहे हैं, परंतु भाई भागवत धर्म में आएगा। और ये 6 हमारा परम शत्रु है। Deze 6 zijn ware vijanden van ons, ja? Ik ben uw vijand niet, hij is uw vijand niet, of zij, of wie dan ook. Onze vijand woont in ons. Het zijn deze 6 vijanden. Mensen, begrijp dit goed, ja? Voordat je bij Bhagwan gaat komen, moet je vrij zijn van deze 6 vijanden. ये भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग से 6 शत्रु को तुम जीत लोगे। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। Dit is je huiswerk, dit moet je leren। Dit is mijn ware vijand। इससे दूर रहना। ये नरक के द्वार खोलेंगे। ठीक, अब हम गरुड़ पुराण की ओर जाएंगे, क्योंकि माता जी ने कहे थे कि उसका परिवार में एक परिवार के सदस्य गुजर गए थे, 4 साल बीत गए। एक माता जी थी, हाँ सासू मम्मी।
परंतु सासू मम्मी के गुण कैसे थे माता? अच्छी थी, भक्ति, अच्छे से बात करते थे। हाँ ठीक, बस इतने काफी। तो भगवान कहा है जिस सच्चे स्वभाव को होगा तो चिंता मत करो, हो जाएंगे। और मम्मी को शरीर मिल गया, उसका चिंता मत करो। तो बालक से उसके जो प्रिय कर्म हुए थे प्रभु, सब वैष्णव ने किए। बस अब तो क्या चाहिए, जब वैष्णव वहां उपस्थित थे तो डरो मत। एक प्लेन गिर गए थे, कई साल बीत गए, एक प्लेन गिर गए थे, सभी मर गए थे। तो भक्तों ने कहा कि उस प्लेन में एक वैष्णव होता ना, और प्लेन कभी नहीं गिरता, क्योंकि वैष्णव हमेशा क्या करता है, हरि नाम बढ़ के जाप करते हैं। और अभी गरुड़ पुराण में आएगा, वो भी भागवत में भी जमराज भी कहेंगे कि हे यमदूतो, ये भक्तों के पास मत जाना। इस जमराज श्लोक है भागवत का कि भक्तों के पास मत जाना जो हरि नाम ग्रहण किया है, क्योंकि उनका सदैव उनका रक्षा भगवान के गदा करते हैं। अगर ये तुम हे यमदूतो तुम लोग मरना चाहते हो तो जाओ वैष्णव के पास, क्योंकि यमदूत कोई नहीं मार सकेगा। परंतु वैष्णव के पास वो गए तब तत्काल उनका मृत्यु। ये भागवत धर्म की कथा है, अजामिल कथा। अभी हम पढ़ेंगे जिस समय रहेगा तब। ठीक, अब चले गरुड़ पुराण की ओर, क्योंकि जो अब इसे याद कर लेना, ये 3 गुण अच्छी तरह से याद कर लेना, इसे सीखना। क्योंकि कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, प्रभु जो वो मरेंगे, वो मरा है, उसके साथ होगा क्या? मैं नहीं बता सकता हूं, परंतु मैं पूछता हूं कैसा व्यक्ति था, उसका गुण क्या था, क्या करता था, उसका कर्म, उसका चाल चलन क्या था। बस फॉर करेक्टर हाथ है सोन पर सोन, तब तुम अनुमान लगा सकोगे। क्योंकि गीता में भगवान स्पष्ट कहा है जो कर्म करेगा वो कहां जाएगा। तो अच्छी कर्म करो, और भगवान कहा कि सब कुछ त्याग करके मेरे लिए सब कुछ करो। ये सत्संग है, ये भगवान का कीर्ति हम लोग गा रहे हैं, परंतु ये विषय उसके लिए है जो भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। ये बहुत भयंकर है। एक समय गरुड़ जी भ्रमण किए ब्रह्मांड में। गरुड़ जी गरुड़ भगवान के वाहन है। Hij is een half adelaar en een half God is hij। वो भगवान स्वयं अपने को प्रकट किए है। बहुत शक्तिशाली गरुड़ है, बहुत शक्तिशाली। Hij gouden vleugels, ओकर पंख स्वर्ण के है। अगर गरुड़ जब पंख मारते हैं तो सामवेद की स्तुति निकलते हैं भगवान के लिए। और भगवान गरुड़ पर कैसे बैठते हैं? भगवान बैठते नहीं गरुड़ पर, भगवान लेटते हैं गरुड़ पर। पैर जिसे गरुड़ के ये उनकर सिर है और उनका पंख है, तो भगवान अपने गोड़ दोनों पैर उधर रखेंगे और अपने शरीर से लेटेंगे। भगवान खाली सोते हैं ना, बिजनेस क्लास। हाँ, बिजनेस क्लास, वाह। कोई फिल्म में देखिए भगवान, देखिए बताया जाता है कि भगवान अपने गोड़ फैला करके गरुड़ पर बैठते। नहीं, ये सब फैला के नहीं बैठते भगवान को कुछ इज्जत मान हो भैया, कुछ शर्म होता है भी ना। तो भगवान लेटते हैं गरुड़ पे और मुस्कुराते हैं भगवान, और गरुड़ ये क्षण में सब जगह चल जाते हैं जहां भगवान इच्छा करते हैं। भगवान केवल इच्छा करते हैं, गरुड़ सब कुछ जानते हैं। और जब पंख हिलाते हैं तो सामवेद की स्तुति निकलता है, भगवान के प्रशंसा होते हैं, उसमें आवाज निकलते हैं ओकर पंख से। ये है गरुड़ जी। वाह, ऐसा सेवा होता ना, सेवा करो तो ऐसा सेवा करो, है कि ना। परंतु एक कठिनाई है, गरुड़ के भोजन क्या है? सांप। उस सांप खाए रहे, ये नहीं हम कर पाएंगे, हम सांप कैसे खाएंगे? परंतु बहुत विशाल सेवा है उनका, गरुड़ जी का। ठीक, तो गरुड़ जी गए ब्रह्मांड में तो सब देखे। तो गरुड़ जी देखा ना ब्रह्मांड में कि कितना दुख है इस संसार में। देवलोक से पाताल लोक, सभी 14 लोक में खाली दुख है दुख। क्योंकि गरुड़ की दृष्टि दूसर है, वो दूसर आंख से देखे, क्योंकि गरुड़ की समझ है, गरुड़ जी का पूर्ण ज्ञान है जिसे भगवान का ज्ञान है। तो लोक को बचाने के लिए, मनुष्य को रक्षा करने के लिए गरुड़ अब गए वैकुंठ धाम। वो देखा समस्त भौतिक जगत में एक क्षण में गरुड़ पहुंच गए, समस्त ब्रह्मांड का भ्रमण कर ली। इन सेकंड का गरुड़ जो फरल था, वो सब कुछ देखे। परंतु जो धरती पर आए तो देखे हाहाकार मचा धरती पर। क्योंकि कौन स्थान है यहाँ, कल हम बताए थे। हाँ, किसने कंठस्थ किया? अभी एक तो था उधर, दुखालयम अशाश्वतम भगवान का। ये दुख का लय है,
अशाश्वतम तैदलक अलीमा एलंद 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 इसलिए तो गरुड़ जी देखे, जो गरुड़ जी वैकुंठ में गए तो देखे वैकुंठ में सभी आनंद में है, भगवान के पार्षद सब, कोई भगवान से प्रेम करता हुआ, कोई झगड़ालू, कोई मारपीट, कुछ नहीं है। मैं सब भगवान की स्तुति करते, भगवान के साथ लीला करते हैं। तो जब गरुड़ जी गए अंदर तो भगवान ने देखा गरुड़ जी को, तो भगवान मुस्किया गए, तो समझ गए कि गरुड़ क्या करने आ रहा है। तो गरुड़ से पूछा भगवान कहा, हे गरुड़, बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ, कैसे हो तुम? गरुड़ जी तो सह नहीं पाए। गरुड़ जी तुरंत कहते, भगवान मुझे कुछ प्रश्न है। इसी से गरुड़ पुराण आरंभ होगा। गरुड़ जी लगभग 60 प्रश्न किए, इस पर शस्त्र फरा। हम सब नहीं पढ़ पाएंगे, परंतु कुछ कुछ हम इसमें बताएंगे। और प्रश्न की ये है महागरुड़ पुराण। महा है? ये महा द allergrootste, uitgebreidste। इसमें संपूर्ण रूप से जितना काम क्रिया है सब इसमें भगवान विष्णु बताया कि क्या इसका मतलब है। तो पहला प्रश्न गरुड़ जी कहे, हे भगवान, जब मृत्यु के बाद जीव को प्रेत योनि में क्यों डाला जाता है? ये पहला प्रश्न गरुड़ जी का। Wie wordt nou een geest na de dood? तो भगवान हम उत्तर देते जाएंगे ना। जब बहुत पापी होता ना, बहुत अधम योनि अधर्म करता है ना, तो वो मरेंगे तो अभी यमलोक में नहीं जाएगा, वो प्रेत योनि में रहेगा। और एक महापाप कर्म, समय मिलेगा तो उन्हें पढ़ेंगे। जे आत्महत्या करता है यानी सेल्फ मोर्ड, वो अवश्य प्रेत योनि में जाएगा। और प्रेत योनि में जे जाएगा, प्रेत क्या है? हम लोग के शरीर, जीव के शरीर चतुर्भुज है, फिर आर्म जैसे विष्णु के है। परंतु हम लोग जब आए हैं इस ब्रह्मांड में, तो हम लोग भौतिक शक्ति से संपर्क, de materiële inertie, we zijn in aanraking gekomen en die lichaam is veranderd और वो शरीर बदल गया है। वो शरीर ऐसे दिखते हैं। कैसे है जानते हैं? ये शरीर बदल जाएगा हमारा। देखो इसका स्पर्ध गोष्ठ है, क्या ये है? एक प्रेत है, एक पैर, तो इस शरीर से और भक्ति से जो तुम भक्ति करोगे तो ये शरीर बदलेंगे सच्चिद आनंद, चतुर्भुज में जाओगे। इसी शरीर में तुम मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवत धाम जाओगे। तो वो कुछ लक्षण होता है। Zijn bepaalde kenmerken hoe je ziet dat iemand vooruitgang boekt in भक्ति। वो क्या है? वो लक्षण क्या है? तो ब्रह्मांड से eigenschappen, सत्य, मान, इज्जत, मर्यादा, नम्रता, ये सब तो वही भगवान के ब्रह्मांड से eigenschappen है। ये सब जब अंदर में भक्ति करोगे, जब प्रकट होगा, तो उसका मतलब है तुम अपने स्वरूप में आ रहे हो। वो स्वरूप है क्या? क्या स्वरूप है? या नहीं भी रखा है, और भगवान के दास के रूप में। तो ये पहला प्रश्न किए है कि जब कोई मरता है तो प्रेत योनि में क्यों जाता है? Wie wordt een spoken geest? Iemand die heel wreed is. Ik geef een voorbeeld, ja? Binnenladen. वो प्रेत is और बहुत दिन प्रेत में रहेगा। बहुत दिन बाद वो जमदूत आएंगे उनको लेने को। ठीक। दूसरा प्रश्न, waarom wordt er पंचरत्न in zijn mond gestopt? पंचरत्न मुंह में क्यों डाला जाता है? एक शव में गरुड़ जी देखे समस्त काम क्रिया। अब गरुड़ जी पूछेंगे एक प्रश्न, क्यों होता है ये सब? तब पंचरत्न है सोना, चांदी, मोती, लाजवर्त तथा मोंग, और लाजा भी कहते हैं, मोंगा भी कहते हैं। goud, zilver, parels en een laja is een soort kostbare steen. Ja.
एंड सो दियामांत रोग दियामांत इस तरह। ये 5 रत्न शव के यानी मुंह में डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में चाहे जहां जाएगा अगर धन दौलत की कमी नहीं होगी, इसीलिए ये सब होता है। साथ दान दिया जाता है। अच्छी तरह से देखिए क्यों होता है ये सब। अभी चाहे जे जितना पाप कर्म किए है, गरुड़ पुराण आया है ओके बचाने के लिए। Hindustanen, algemeen, ze hebben goed leven, क्योंकि हिंदुस्तान leven meestal in de gaten goed है, सतोगुण में वो अपने भगवान से जुड़े हैं, वो चाहे जैसे अच्छा, क्योंकि door die maatschappij worden ze wel een beetje doorgetrokken daar naartoe, maar वे सब अपन पूजा करते हैं, कभी यज्ञ करते हैं, कभी कुछ ना कुछ धार्मिक करते हैं ना, तो वो कुछ पुण्य कर्म से हुआ है। परंतु बहुत जो उधर गिर जाएंगे ना तो समस्या बड़ा गंभीर हो जाएगा। इसीलिए साधु संग साधु के बहुत सीखोगे, पढ़ो। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न करते हैं, waarom wordt de poesgras onder de lijk neergezet? पूषा घास शव के नीचे क्यों रखा जाता है? हे भगवान, तो क्यों? आप लोग जानते हैं पूषा घास क्या है? पुष घास भारत में उसे पतला के तो भगवान वराह के रोम है, तो बहुत पवित्र है। और फिर जब शव धरोगे तो समस्त पाप कर्म से जीव मुक्त हो जाता है। तो वो जब लोग जाने कोई नहीं आएगा, इसीलिए। और कई प्रश्न किए हैं गरुड़ जी। और एक प्रश्न और इसमें है, घी, आप लोग जानते घी क्या है? घी से शव को शरीर भर में क्यों लगाया जाता है? ये प्रश्न भी गुरु जी कहा पूछा। De lijk waarom wordt die gesmeerd met घी? Dat lijk, क्योंकि जब तक वो शव रहेगा वो जीव वहां से हटेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ममता ही शरीर से ना। तुम ये शरीर छोड़ पाओगे? कौन ये शरीर छोड़ना चाहता है? कोई नहीं, बहुत ममता है। We zijn zo gehecht met het lichaam, we kunnen deze lichaam niet loslaten. Alweer als je een beetje ziek wordt. Kijk wat er gebeurt. Dus we zijn zo gehecht, en waar die lichaam ook gaat, वो शव जहां जाएगा प्रेत उनका साथे साथे चलेंगे। तो सबसे पवित्र कार्य ये है कि शव को तुरंत जलाया जाएगा। प्रभुपाद जी कहा है कि जिस दिन मरा उसी दिन 1-2 घंटा में उसको शव को जला दो। हाय हे हो ना करो और बैंड बाजा से कुछ नहीं करो, वो क्या तुरंत जलाओ। हाँ होता है, बैंड बाजा लेकर के जाते हैं, क्योंकि जीव बहुत दुख काटते उस समय, क्योंकि वो अपने शव को देख करके बार बार रोता चिल्लाता भी। तो घी लगा देते शरीर में, घी क्या करते हैं? अग्नि को भड़का देते हैं और जोर से एकदम जला करके तुरंत राख कर देते हैं। तो जब देख ली इसकी कोई शरीर विनाश हो गया, तब उनको ज्ञात होता है कि नहीं, सचमुच कि मैं शरीर नहीं। तब वो शरीर छोड़ करके तब थोड़ी सी शांति मिलेगा, वो चले जाएंगे जहां के जाने। हाँ, बखराफ is eigenlijk in principe ook niet goed, प्रभु, क्योंकि वो वही रहेंगे। जाओ बखराफ प्लास पे, एक शमशान घाट पे जाओ, खाली प्रेत के स्थान है वहां, है कि ना? चाहे देखोगे ना तो तुम्हारा रोंगटे कांप उठेंगे। अब मना किया गया रात को उस स्थान की ओर मत जाओ, देखो ना, घूम करके दूसरा के दिश जाओ और लौटो तभी दूसरा के दिश जाओ, और वृक्ष के नीचे मत जाओ। हॉलैंड में तो बड़े हैं, हॉलैंड में तो जगह जगह फॉल फंदा आते बहुत प्रश्न किए गुरु जी, बहुत प्रश्न। प्रभु ऐसे लग रहा है जैसे ये सब चीज रिचुअल जब नहीं होगा तो समझ सकते उसका गति क्या होगा। हाँ, गति बहुत भयंकर होगा। माने जो कर रहे हैं उनका तो है ही है। हाँ, जो जानता है इसे, जो ये काम के लिए अच्छी तरह से करते हैं, वो जीव बचेगा, अवश्य बचेगा। परंतु आजकल के जो पंडित होते हैं ना, उसे वो कुशल होना चाहिए, वो प्रवीण होना चाहिए। देखिए ये वैष्णव के लिए ये लागू नहीं है। वैष्णव तो प्रभुपाद जी ने कहा हजारों पितरों को छोड़ा सकता है भगवत भक्ति से। और कैसे? केवल एक तुलसी पत्र भगवान कृष्ण के चरण पर रख दो और प्रार्थना कर दो कि मेरा पूर्वजों की रक्षा करो, बस। देख भगवान क्या करता है, क्योंकि अपने भक्तों को भगवान बहुत चाहते हैं, बहुत। एक प्रश्न गुरु जी की है इसमें, पिंडदान क्या होता है?
हे भगवान क्यों पिंडदान दिया जाता है? Pindadan क्यों दिया जाता है? Een rijstballetjes met sesamzaad wordt gemaakt en een beetje hiel zit erin, zo'n balletjes, en dan wordt daan gegeven. तो प्रेत को जो भोजन करोगे उसे, और जो तुम्हें शक्ति मिलेगा वो प्रेत को मिलेगा, क्योंकि प्रेत भूखा रहता है। और यमदूत जब ले जाते हैं कोई यम मार्ग पर, kijk, om de zoveel dagen wordt de pindedaan gegeven, zijn die 13 dagen. En plus daarna een jaar, tot aan een jaar. Pindedaan en shraad. Alles wordt gegeven daar. Daar ga ik er zo meteen even op terugkomen, ja? ठीक, schaal, slippers, paraplu, kleding, ringen, etc. Waarom wordt deze spullen दान gegeven? Schaal, थाली दान दिया जाता है, स्लीपर्स पादुका दान दिया जाता है, छत्र दान दिया जाता है, वस्त्र दान दिया जाता है, अंगूठी दान दिया जाता है। ये सब क्यों दान दिया जाता है? क्योंकि जीव जाएंगे एक मार्ग पर, यम मार्ग पर, तो वहां पर बहुत दुखदायक मार्ग है, और बहुत धीके है वहां पर, बहुत कांटा है मार्ग, बहुत ऐसा भयानक जानवर वहां आता है जो कि काटेंगे, क्योंकि जीव को एक यातना शरीर मिलेगा वहां पर। तो ये सब दान दिया जाता है कि उन्हें बचाने के लिए उनका मार्ग थोड़ी सी आसानी से वो मार्ग चल सके। पाराप्लू छत्र मिलता है क्योंकि वहां पे बहुत धूप होता है ना, बहुत घाम होता है, बहुत गर्मी होता है। और स्लीपर्स यानी पादुका मिलता है क्योंकि वो बहुत भीगता है वहां पर। और हम लोग ब्लूटूथ चले बहरे ना, देखिए क्या होगा। तो इसे यम मार्ग पे भी है। Waarom dragen wij schoenen? Nou, om die voeten te beschermen, toch? Kleding, wस्त्र दान दिया जाता भी कि ओके ठंडा ना लगे। और रिंगन, what was the ring वो कल भी? यमराज के संतुष्ट कर खर्ती को रिंग दान दिया जाता है। और क्या, ये भूल गए थे। बहुत प्रश्न किए। हाँ, गरुड़ जी कहा, हे भगवान, एक पापी के साथ क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा? तो ये प्रवचन इसी प्रश्न पर आधारित है। अच्छा, हम बाद में बताएंगे। Degene die zieldoder is, een brahmandoder, goud steelt, een vriend bedriegt, wat gebeurt er met hen? अभी आएगा, ये पाप कर्म से क्या होगा? और अब वो प्रश्न गरुड़ करेंगे कि हे भगवान, मैंने सब त्रिलोक गए, सब देखे, सबके आचरण देखे, अल खदरा पे खजीर, मैंने देखा ये भयंकर मृत्यु, तो हे प्रभु मुझे जिज्ञासा हो गया है, न्यूशीरख। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं गरुड़ जी, हे भगवान बताइए ये मृत्यु है क्या? वाह, क्या प्रश्न किया गरुड़ जी। अब एक अध्याय भगवान केवल मृत्यु के बारे में कहेंगे, और वही अब हम एक एक वाक्य पढ़ेंगे। अच्छा, इसे याद कर लेना कि मृत्यु के समय क्या देखोगे, कैसे आएगा, क्या होगा तेरे साथ। परंतु ये प्रश्न गरुड़ जी किए हैं, ये पापी लोग के मृत्यु है। अच्छा, ये तमोगुण का मृत्यु है। जो सतोगुण में रहेगा, रजोगुण में रहेगा, उसके लिए ये लागू नहीं है। Het is niet van toepassing die in goedheid en hartstocht is. Maar iemand die wreed geleefd heeft, iemand die altijd slecht geleefd heeft, voor hen geldt dit. En die plaatje staat daar, ja? इस प्रश्न पर अब भगवान एक पूरा अध्याय कहेगा, और elke zin ga ik vertalen, ja? Een gedeelte van Garuda Puran. Nu zegt भगवान विष्णु, हे पक्षीनेन्द्र, अब मृत्यु के स्वरूप विस्तार पूर्वक सुनो. Luister nu de uitgebreide dood. Hoe gaat de dood? Wat ga je merken, ja? भगवान कहा, मृत्यु ही काल है, काल मृत्यु ही है? उसका समय आ जाने पर जीव आत्मा से प्राण और देह का वियोग होता है. जब काल आएगा, मृत्यु आएगा, जीवात्मा और देह से वियोग. Dus het van het lichaam gaan we gescheiden worden. और मृत्यु अपने समय पर आती है. समय की प्रतीक्षा करो, मृत्यु अपना समय पर आएगा. जब तुम कुछ नहीं करोगे, जब तुम जियोगे जैसे एक जानवर या
जैसे एक रजोगुनी भगवान की बात नहीं सुनोगे तो मृत्यु अपना समय पर आएगा। और जियोगे जो तुम भगवान जैसे कहा है तो मृत्यु तुमसे दूर है, काल तुम्हें छू नहीं सकेगा। जामिल की कथा एक उदाहरण है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए कर्मों को एकदम भूल जाता है। Als de dood komt, vergeet hij al zijn zonden. Wat hij gedaan heeft, al zijn karma. हे गरुड़, जिस प्रकार वायु मेघमंडल को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। Zoals de wolken, de wind, de wolken her en der verscheurt en wegbrengt en verdeelt, zo gaat de geestelijke ziel, is hij in bedwang van kaal. जैसे काल खेलेंगे वैसे उसके साथ होगा। काल के वश है सब कुछ। सात्विक, रजस और तामस, goedheid, hartstocht en onwetendheid, ये सभी भाव काल के वश में है। is een hele goede zin. Hartstocht, goedheid en onwetendheid zijn onder leiding van kaal. Maar काल से एक चीज और परे है। वो क्या है? क्या उसका नाम है? तो जानते हैं, वासुदेव सत्व। भक्ति, भक्ति योग काल से परे है, ये तीनों गुणों से परे है। ओके, काल छू नहीं सकेंगे। और वह है क्या? वासुदेव शुद्ध सत्व क्या है इस युग में? हरि नाम। जो हरि नाम करेगा वो काल उसे छू नहीं सकेगा। भागवत की कथा, कितने उदाहरण दिया गया भागवत की। इस पर विश्वास करो और भगवान नाम जाप करके देखो, अपने तुम्हें अनुभव होगा। प्राणियों में वे काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। De kaal die begeleidt iedereen, alle levende wezens. हे सर्पहंता गरुड़, सुरो, सूर्य, चंद्र, शिव, महादेव जी, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठों वसु, नदी, सागर और भाव अभाव। भाव अभाव, अभाव इस तकोट, भाव इस खमुत्तुस्तान, ये सभी काल के अनुसार यथा समय उदित होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं और मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाते हैं। महादेव जी भी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा कि महादेव जी भी एक समय आएगा, क्योंकि उसका मृत्यु हमारे घर नहीं है, वो एक शरीर महादेव जी ने धारण किया काल के रूप में, परंतु वास्तविक महादेव जी के स्वरूप है विष्णु, विष्णु के स्वरूप है, तो वो अपने स्वरूप में वापस चले जाएंगे। महाविष्णु से महादेव जी प्रकट हुआ है, परंतु जो महादेव जी भोले शंकर है वो काल का रूप धारण किया है। वो कुछ समय के लिए, जब ये ब्रह्मांड विनाश होगा तो महादेव जी भी अपना वैकुंठ चले जाए। वो महादेव जी का एक प्रकार का तथाकथित सौ का नाम मृत्यु है। मृत्यु नहीं, वो त्याग करके चले जाएंगे। तो सभी काल के प्रभाव में है। काल जैसे चलाते हैं वैसे ही होगा। युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे महाभारत में। जब युधिष्ठिर महाराज को पता चला ना कि कर्ण उसका देश भ्राता था, तो बहुत रोए थे युधिष्ठिर महाराज। वह तिलांजलि दे रहे थे, तब उनकर माँ आए युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर सभी को जल और दीप दे रहे थे, तो उनकर माँ कहा, धीरे से जाकर के उनके कान में कहा, हे पुत्र, एक तिलांजलि और दो। उन्होंने कहा, माँ किसके लिए? उनकर माँ संकोच हो गई, बोल नहीं पाई। उन्होंने कहा, कर्ण के लिए। तो कहा, कर्ण क्यों? कर्ण हमारा संबंधी नहीं है। तब कहा कुंती देवी से, उन्होंने कहा, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था। और बोल करके मूर्छित हो गई, गंगा में गिर गई थी। तो युधिष्ठिर ने उठा करके ले जाकर नदी के किनारे पानी छिड़के और कहा, माँ ये इतना बड़ा गुप्त बात तुमने मुझसे छिपाए क्यों? क्यों छिपाए? तब युधिष्ठिर महाराज गंगा जल उठा करके, धर्म का अवतार था, तो समस्त स्त्रियों के श्राप दिया कि स्त्री के अंदर में कुछ बात नहीं छिपेगा, इसलिए स्त्री के अंदर में कुछ बात नहीं है। युधिष्ठिर महाराज के श्राप है। तो युधिष्ठिर महाराज रोने लगा। तो भगवान कृष्ण ने जान गया कि बहुत दुख काट रहा है युधिष्ठिर महाराज। तो भगवान आगे आए, तो भगवान कहा, युधिष्ठिर रो मत, क्योंकि सब कुछ काल ने किया है, सब कुछ काल के वश में है। और यहाँ काल के नियम ऐसा है, जैसा करनी वैसा भरनी है, इसे याद कर लेना।
जो कर्म करोगे तुम्हें अवश्य मिलेगा, अच्छाई करोगे अच्छाई मिलेगा, बुराई करोगे तुम्हें बुराई मिलेगा, क्योंकि ये काल का नियम है और ये क्या तोड़ कोई नहीं सकता है, केवल हरि के आज्ञा से टूटेगा, भक्ति के माध्यम से। जब तुम सचमुच के भगवान के पास जाना चाहते हो तब भगवान कहा वचन दिया गीता में कि मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों से उद्धार कर दूंगा, डरो मत। जब तुम चाहोगे तब, और जो तुम नहीं चाहोगे तो रहोगे, और सब काल के अधीन दुख सुख तुम्हें आपको भोगना पड़ेगा। गंभीर ना, बड़ी चोट लगता है, मैं समझता हूं कि भगवान सोच समझ करके सृष्टि रचा है, भगवान की कोई कसूर नहीं है। अभी हम उसका महिमा गाएंगे, बताएंगे कितना प्रेमी है कृष्ण रे, अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ। अर्जुन के रथ हाथी से भगवान है, जेकर शिव जी जेकर पूजा करे है, वो अर्जुन के दास बने थे। क्यों? गोपी के दास बना है भगवान, युधिष्ठिर महाराज के दास बने हैं भगवान, युधिष्ठिर महाराज के रसोई घर में काम किए थे भगवान हो करके। कृष्ण है कई दिन खबर भाई पांडव कोक हुकुम दत्त अपने भक्त को इतना चाहते हैं, भगवान संसार को दिखाना चाहते हैं कि जो धर्म और सत्य के राह पे चलेंगे मैं उनका दास हूं, है कि ना? ये लीला भगवान करके दिखाए। जो तुम बचना चाहते हो तो जाओ भगवान की शरण में जाओ। भगवान आगे कहते हैं, पक्षी जब मृत्यु आ जाती है तो उनके कुछ समय पूर्व दैव योग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। जब मृत्यु आएंगे तो दैववश काल के वश काल के आज्ञा से एक रोग आएगा। ये रोग है क्या? अभी हम जाएंगे जब समय देखिए कि कैसे ये सब रोग है। देखो रोग के स्वरूप, ये आयुर्वेद में से मैंने निकाले हैं। रोग एक व्यक्ति है, जिक्त से पर्सोनन, वो जमराज के सामने बैठते हैं, जमराज के साथ, जमराज के आज्ञा से आएंगे। ये आयुर्वेद के है। ये ज्वर है, ज्वर रोग। 9 को मैंने निकाले हैं, परंतु अनंत है, बहुत है, बहुत है। ठीक, kijk maar, geef het maar toe. Ja? एक रोग आएगा, इंद्रिया विकल हो जाएगी। ये zintuigen zijn helemaal in onrustig, अधीर, और बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाते हैं। बल, ये kracht wordt minder, ओज, ये felheid wordt minder, और वेग, weet je, je snelheid wordt ook zwak। is logisch है? जो रोग पकड़ लेते हैं तो कुछ नहीं काम करते हैं, आंखी से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता है, बहुत दुर्गति होता है। ये सब काल के वश में। भगवान कहा गीता में, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये बहुत दुख है, ये बहुत दुख है। हे खग, प्राणियों के करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ काटने का जो अनुभव होता है उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। 1 करोड़, करोड़ क्या है? मिलियन, 3 मिलियन कहा जाता है। जब बिच्छू एक साथ काटेंगे, als zoveel scorpioenen, miljoenen scorpioenen jou tegelijk bijten, जो पीड़ा का अनुभव होता है वो मृत्यु समझो, वो अनुभव होगा, बहुत पीड़ा होगा। परंतु ये तमोगुण का है, मृत्यु है, ये पापी का मृत्यु एक होता है। उसके बाद ही चेतना समाप्त हो जाती है वो भविष्यलोस। कभी 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 देखा किसी को मरना? ये भयानक मृत्यु किसी को देखा? हाँ देखो, हाँ सिकन हाउस में अब मत जाओ, अब तो भगवान की दया से यूट्यूब आ गया है ना, यूट्यूब पे टेक कर दे, वो सीधे दौड़ रहा है, तो देखिए कितना दौड़ दिखिए, सच है। अब तो देखिए मृत्यु कैसे है, वो क्या होता है, और तो देखिए गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है।
वो चेतना समाप्त हो जाती है, bewusstijn verliest hij. जड़ता आ जाती है levensloos, hij kan niet meer bewegen, वो हिल नहीं सकता है। तदनंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं। उस समय यमदूत आ जाएंगे उनके सामने। देख, ये चित्र यहां से मैंने निकाल करके वो बनाए। यमदूत अब आएंगे, अब केवल वही देखेगा। देखो कितना भयंकर है यमदूत। अनेक अनंत यमदूत है वहां, अनंत है, और उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। Balaat betekent met geweld. Hij begint die vijandstoffelijke lichaam met geweld eruit te trekken. उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। जो हमारा प्राण वायु जो सांस चलता है ना, यहां कंठ में आ जाएंगे, है? तो वो सांस लेंगे तो वह सुनाएंगे ना एक आवाज, तो सुनाएंगे, और वो बोल नहीं सकेंगे क्योंकि यमदूत लड़ रहा है वहां। अगर de fijnstoffelijke lichaam wordt eruit getrokken. मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप बीभत्स्य हो उठता है। Voordat die dood komt, is शरीर बड़ा भयानक दिखने लगेंगे। heb je lijk gezien? इतना भयंकर दिखा है। अरे लोग तो खाते हैं, भयंकर क्या दिखते हैं, हाँ? लोग खाते हैं lijk iets। वो फेन उगलने लगते हैं। Schuim komt uit zijn mond। उसका मुंह लार से भर जाता है, vol met slijm। The mond is vol met slijm। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाले वह अंगुष्ठ परिणाम रूप हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर के देखता हुआ यमदूत के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। इसका मतलब है कि fijnstoffelijk lichaam जो सूक्ष्म शरीर है, यमदूत खींचता वो चाहता नहीं है, परंतु वो यमदूत के वश में, यमदूत की खींच लेता, तो अपने घर को ये घर हमारा है, देखते देखते वो यमदूत के पास में बन जाएंगे। काल सूत्र कहा जाता है, काल पाश भी कहा जाता है। Die touwen, die kijk je, Yamdut hebben touwen in zijn hand, linker, rechts, alleen maar rechts, zie je? Ze kon je niet opzetten। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकुपित हो तीव्र गति को प्राप्त करता है। हमारा वायु जो है, heel veel lucht hebben we in ons lichaam, कितना वायु हमारे शरीर में है, सब प्रकुपित हो जाता है, heftig, सब गर्मी, वो गर्म और ठंडी लग रहा है, दोनों। और उसी के शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकुपित हो उठता है और आग घन, शरीर एकदम गर्म हो जाते हैं। बिना ईंधन के प्रदीप्त तो उष्मा प्राणी के मर्म स्थानों को भेदन करने लगती है। Als het heel heet is binnen, शरीर में बहुत गर्मी हो जाते हैं ना, तो पीड़ा के अनुभव जो होगा वो शरीर भर में जैसे आग लग गई है बदन में, उतना पीड़ा उसके शरीर में होगी, जिसके कारण प्राणी के अत्यंत कष्ट की अनुभव होती है, उसे बहुत दुख होती है। परंतु अब आएगा, सुनो अच्छी तरह से, परंतु भक्त जनों एवं भोग में अनासक्त जनों की, जो यहाँ संसार में भोग विलास नहीं करते हैं, जो अच्छाई से जीते और जो भक्त जनों हैं, अधोगति निरोध करने वाले उदान नामक वायु ऊर्ध्व गति का ही हो जाता है। इन लोगों को जो वायु है, जो इंद्रिया में जो ये सब बताया है, उसे सब शांत रहता है, क्योंकि जो यहाँ पर बहुत रजोगुण में जीते हैं और तमोगुण में जीते हैं, वो शरीर छोड़ना नहीं चाहता, वो अपने धन दौलत नहीं छोड़ना चाहता, वो अपने परिवार को नहीं, अपने गाड़ी को नहीं, अपने कुछ, अपने मोटर को भी नहीं छोड़ना चाहता है ना, तो बड़ा गद होता है उन लोगों को, है? क्यों हंसे? हाँ, अपने घोड़ा गाड़ी गधा को नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं? देख पार्कियर पर कितना घोड़ा खड़ा है, पेका पार्द करा है कि ना? जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते हैं, यानी प्रीति liefde niet verbreken, है, जो झूठ नहीं बोलता, geen liegen en liefde niet breken, आस्तिक is religieus और श्रद्धावान है, यानी gelovig
उन्हें सुख पूर्वक मृत्यु प्राप्त होता है। उसका मृत्यु सुख पूर्वक होता है। मृत्यु, हाँ, मृत्यु भी सुख पूर्वक होता है, हमेशा दुख पूर्वक नहीं होता है। ये गरुड़ पुराण कौन हिंदी पढ़ता है यहां? आकर के स्वयं पढ़ो। सुखपूर्वक हिंदी भी, सुखपूर्वक मृत्यु भी होता है, हिंदी में पढ़ो। क्या है सुखपूर्वक मृत्यु? या natuurlijk dood, जहाँ वो सोते ही रह जाना, बैठले ही रह जाना, है कि ना? Dat is dood in de geaardheid goedheid। ये सत्वगुण का मृत्यु होता है। पहले के लोग होते थे, घर पर ही आसानी से शरीर को त्याग देते थे। और आजकल ये यहाँ चिकित्सालय सिकनहाइस है, ये नरक के द्वार है कहा जाता है। कितना भयंकर मृत्यु आते हैं। जो काम ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग करते हैं, जो काम ईर्ष्या और द्वेष से अपना धर्म को जो त्याग देते हैं, सदाचारी और सौम्य, सौम्य इस फिरिंदलखैत को भी निश्चित ही नहीं सॉरी, जो काम ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग न करे, अपना धर्म को न त्यागे, चाहे जो हो जाए, और सदाचारी और सौम्य हो, जे अच्छी चाल चलन है, जेके सौम्य यानी फिरिंदलक है, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। ये कर्म के अनुसार अच्छाई से कर्म जो करते हैं उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होता है। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, हाँ, मोह में है और अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। क्योंकि जीवन भर अंधकार बांटे है ना, तो अंत में भी अंधकार में बंधेंगे। जो झूठी गवाही देने वाले, असत्य भाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक है, वेद का जो निंदा करते हैं, ये सब हम नहीं मानते, ये सब झूठ है, ये तो वो, वे मूर्छी रूपी मृत्यु प्राप्त करते हैं। मृत्यु के समय मूर्छित हो जाते हैं, सब फॉल फ्लॉ इन द यूरदेस डोग्स। ये देखा है आप लोग भी, सुना है कि मृत्यु आने के समय वो मूर्छित हो जाते हैं और मल और मूत्र भी त्याग देते हैं। अभी आएगा। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुदगर, लाठी क्या है जानते हैं ना, और मुदगर क्या है? कांटा लगे हुए, और मुदगर युक्त दुर्गंध से, ये सब बहुत दुर्गंध है, जमदूत, ये सब सराय क्यों नहीं थे लग, बहुत दुर्गंध है ये सब के। क्योंकि जब सूरीनामा हम थे तो जब कोई अब समय आ जाता था कोई मरने को, तो कुत्ता बहुत भौंकते थे, क्योंकि कुत्ता के नाक बहुत तेज है, वो सूंघ लेते हैं। ये सब जब आते तो वहां ऊपर रहते हैं, ये सब अगोरते हैं, और ज्यादा से ज्यादा भी जमीन में से आते हैं, क्योंकि वो यम हमारा जमीन में भी है, वहां ऊपर भी रहते हैं। तो कुत्ता उसके जान जाते हैं, देख लेते और सूंघ लेते हैं, तो कुत्ता बहुत भयंकर रोने शुरू कर देते हैं, है कि ना? ये सुना है आप लोगों ने? क्योंकि ये दुर्गंध, बहुत गंध है इस सबके। वहां हम लोग में झाड़ू नहीं होता है, खाली मारपीट करते हैं, दुश्मनी ये सब कुछ नहीं जानते। जेल में कुछ होता है सफाई है, देखा है? वो मारपीट के वही रहो, मारो चाहे जियो, वही हम लोग वही। दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। अब उसी समय यमदूत आकर के उपस्थित हो जाते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भववश कंपन होने लगता है। जब वो मरेंगे और जो कांपने लगेंगे और चिल्लाने लगेंगे, वो कोशिश करेगा पर आएगा नहीं, परंतु जब बहुत भय से कांपने लगे तो उसका अर्थ यह है कि वो अब यमदूत को देखता है। Wetenschappelijk is dit allemaal ook bewezen, hè? Maar ze kunnen niet verklaren wat er daar gebeurt. उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत आख्तरकार माता पिता और पुत्रों को याद कर करुणा क्रंदन करते हैं। देखो, अब ये जमदूत देखेंगे तो सोचेंगे लड़कन, स्त्री, माता पिता, परिवार, अरे उसका भगवान को चाहिए सोचे के
भगवान को पुकारे चाहिए, तो माता पिता क्या करेंगे, बाल बच्चे क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे? कोका कोला की सोच रहा हाँ सच्चे भैया, कोका कोला भी सोच रहा। हाँ इंडिया में भैरा तो जाए करके समझ खाली कोका कोला दान दे रहा सब ओकर अंतिम संस्कार मंदिर में। एरिक्सन का मेरे फैमिली में एरिक्सन कि वो दारू पीते थे, एंड में जाके सबको दारू दान दारू दिया। दान देते So Coca-Cola que soort van wat voor leven? Laat het door, wat voor leven wordt? Wat is Coca-Cola fles? नहीं अब ओकर कर्म बताओ करी प्रभु फंक्शन हिल से लीफ या कुछ Prabhu, mag ik nog even een vraag Ja. stellen? Prabhu, आप बोले थे als je naar Krishna, wat was het? Ik loop eigenlijk. Maar het is zo, maar als iemand meestal उसको बोले ओ शायद मैं लड़का अपने के जो ग्रह है, तो उसका ग्रह शांति करे है, तो komt zijn leven weer beter, oprecht. Hoe zit het daarmee, Prabhu? Zo, हाँ, वेद यदि संस्कार वेद में लिखा संस्कार, ये 16 संस्कार हमारा क्या है, हम लोग के पाप कर्म से मुक्त करने के लिए 16 संस्कार दिया गया है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके तुरंत उसका संस्कार शुरू हो जाता है। संस्कार बताइए कॉरेक्सी जॉयफरिंग फरबेइतर, क्योंकि ये बच्चा जो आया है तुम जानते हो कौन है वे, पूर्व जन्म में क्या करके आया है। तो इसलिए हमारा वेद ये सब संस्कार दिया गया है कि इनकर पाप कर्म से इके मुक्त करो, तो वो संस्कार से वो पाप कर्म से मुक्त हो जाएगा। तो जो कुछ दुर्घटना होंगे और या जो उसका भाग्य में लिखा तो भाग्य बदल जाएगा। इसीलिए ये संस्कार बहुत आवश्यक भी है। परंतु सबसे शक्तिशाली 16 संस्कार में से नाम संस्कार है। अगर तुम नाम दो तो क्या हरि का नाम दो, क्योंकि नाम जो बोलेगा और जो सुनेगा दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। आलत में वो दखसाइफर जैसे अजान लिखा था, नाम संस्कार सबसे शक्तिशाली है। सोच प्रेम छबड़ा के नाम मत दो, कुछ ऐसा नाम दो ना कि वैसे चाल होगा भी होगा। सच्चे सवासत नाम है सो खाती से खतरा है। माता पिता की याद करके रो रहा है, क्या लाभ, क्या करेगा माता पिता? नहीं, आज से शुरू करो, क्योंकि वो आ रहा है, वो राम बाण है, वो पताल लोक से आ रहा है। जाप करो, जैसे ट्रेनिंग, एक बार पर ऐसा ट्रेनिंग है। ये एक वो है, एक भागवत विद्यालय ऐसा हरि के नाम याद करो। हरि एक अध्याय में गीता में 7वां की 8वां अध्याय में संपूर्ण अध्याय में भगवान कहते हैं, उस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। गीता में भगवान कहा कि जो अंत समय पर मुझे याद करेगा निश्चित रूप से, शेर से ही कर भगवान कहा निश्चित रूप से वो मुझे प्राप्त करेगा, वो मेरे पास आएगा। ये भगवान का वाणी है। तो कैसे हम भगवान को याद करें? उनका नाम पुकारो, रात और दिन भगवान के नाम पुकारो। यही है सनातन धर्म। इस युग का धर्म हरि नाम संकीर्तन यज्ञ है। प्रभुपाद जी से कितने लोग विरोध किए थे। प्रभुपाद जी से पूछा ये हरे कृष्ण हरे राम किसके लिए है? प्रभुपाद जी कहा एक वाक्य कहा, सबके मुंह बंद हो गया। प्रभुपाद जी कहा ये हरि नाम धरती पर प्रकट हुआ है समस्त जाति जनता समाज के नरक से बचाने के लिए। सबको मुंह बंद, चुप, ये नरक के नाम सुने। उसका अर्थ है सभी नरक में जा रहा है, क्योंकि नरक संपूर्ण धरती नरक में बदल गया है कि ना? आप सहमत हैं मुझसे? नरक हो गया है इस वक्त। एक गुरु से पूछा एक शिष्य, महाराज उसका साथ होगा क्या जो कृष्ण की शरण में नहीं है? गुरु महाराज कहते वो नरक में जीता है। जो भगवान की शरण में है ओके काल छू नहीं सकेंगे, जैसे गरुड़ पुराण भी कहा है, काल को छू नहीं सकेंगे। भगवान की शरण में रहो। भयावश प्राणी के आंखें नाचने लगती है, आंखें ऐसे नाचेंगे, क्योंकि उस समय परमात्मा ओके जीवन भर का जो कर्म किए हैं परमात्मा उन्हें दिखाता है। वो नाचेंगे, वो देखेंगे सब कुछ। और जो से सबसे ज्यादा आसक्ति रहेंगे इनसे नहीं हमारे खैख्त बस उसी पर वो केंद्रित करेंगे। अगले जन्म में वही प्राप्त होगा उन्हें। बहुत कहीं से हो करके तब आएगा फिर। उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगती है। आदम हज्वार सांस बहुत जोर जोर चलने लगे, मुंह खोल करके सांस लेंगे। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है।
वेदना का अर्थ है अति अति दुख, बहुत दुख काट करके तब वह शरीर को त्यागेंगे और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पर्शीय और घृणा योग्य हो जाता है। उसके बाद जो वो शरीर तुरंत जो जीव आत्मा त्यागेंगे तो उसके बाद अस्पर्शीय इस onaanraakbaar और घृणा योग्य betekent afschuwelijk. Als je een lijk ziet, is onaanraakbaar en afschuwelijk ziet hij uit. वो लाइक देख ले तो देख हमारा हालत बिगड़ जाएगा, है? क्योंकि हाल ये जल्दी ले जाओ यहाँ से, भागो कि जराओ, ये स्थान ना है यहाँ। इतना घृणा है इस शरीर, इतना, और कितना ममता है इस शरीर से हम लोग से ना। ये शरीर दिखता है जब ले जीव आत्मा इसमें है तब ये शरीर थोड़ा से अच्छा से दिखते है, परंतु जहां जीव आत्मा निकल गए सड़ने लगता है, टूटने लगता है, गिरने लगता है। कभी देखा किसी शरीर को जलाया जाता है क्या होता है? कितना वो दुर्गंध निकलता है और जो जल निकलता है, दी vocht, दी belletjes। हाँ, बारबेक्यू जो करते हैं ना, वो देख लेना, वही है। बहुत अच्छा वाक्य है। भगवान कहते हे गरुड़, इस प्रकार मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का स्वरूप सुना दिया। ठीक, यथा मृत्यु के स्वरूप, hoe de dood naar je toe komt, ja, गंभीर ना। Ik verhaal wat hij zei. Met verbranding. Waar in Polen geweest. Ja, पूरी में। Heb je zwart gehad. Degene die het wil zien, is welkom. Ja, we hebben dat ook gezien। वहाँ पुरी में, जगन्नाथपुरी में हम थे, तो वहाँ पे एक स्थान है, वहाँ पे शव को जलाते हैं। परंतु मैं जब पुरी गए ना तो देखिए रास्ते भर में मैं देखा घास जलते हुए, तो मैंने कहा ये सब घास जलाते हैं। पर पुरी में बीच शहर में वहाँ भी हो रहा था, तो मैं सोच रहा था, देखा नहीं, सोच रहा था सब घास जला रहे थे, परंतु वहाँ शव जला रहे थे। रोज के 5-6 हाँ, लोग वो आते हैं, रोज के काम धंधा वही है। अच्छे लोग आते तो 1-2 दिन हम वो जब गए ना, जब अच्छी तरह से देखा तो देखा एक शरीर कैसे लटका हुआ, उसमें से कैसे सब धुआं निकलते हमारा आगे। बोले प्रभु बोले देखो 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 शरीर जलता है वहाँ। बाप रे, बड़ा नहीं हम नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो यह है मृत्यु के स्वरूप। अब चले भागवत की ओर। की महिमा और श्रीमद् भागवत की कथा शायद कोई अन्य पुराणों को संशय करेगा, ट्वाइफल्स, परंतु भागवत में ये अमलम पुराण है, द अनबेफ्लेक्टेड पुराण। इसमें जो लिखा है, जो बताया गया है, वो पूर्ण सत्य है। इसमें श्रीमद् भागवत में, ये भागवत की महिमा है। इसमें ये 5वां स्कंद में जब सुखदेव गोस्वामी बताने लगा संपूर्ण सृष्टि, कैसे कौन लोग कहाँ है, कैसे कैसे, तो वर्णन करते 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 नीचे गए। नीचे है सबसे नीचे यमलोक। अब यमलोक के वर्णन, महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे महर्षि, हे सुखदेव गोस्वामी, यमलोक कहाँ है? इस ब्रह्मांड में, इस धरती के आसपास, या इस ब्रह्मांड के बाहर? तब इस प्रश्न पर सुखदेव गोस्वामी यमलोक का वर्णन करेंगे। Mata tot hoe laat heb ik? Dan mag het doorgaan. Zeg maar, tot hoe laat? Jullie gaan bepalen, ja? Dat is mijn wagen. Als je zegt van het is genoeg, dan stop ik ermee. Als je zegt ik wil doorgaan, dan gaan we even door. Ja? Jullie gaan bepalen. Ja? Ik ga daar een paar versen hierop lezen, ja? तो सुखदेव गोस्वामी अब यमलोक के बारे में वर्णन, उन्होंने कहा कि नीचे के लोग, पाताल लोक है, तो पाताल लोक से नीचे, एकदम नीचे, और तो वहां पर संयमनी पुरी है, यमराज के भवन,
तो एक मार्ग है यहाँ पृथ्वी से 7 लोक नीचे, वहां संयमनीपुरी तक, उसमें 16 नगर आते हैं और उस मार्ग को कहा है यम मार्ग। मैंने पृथ्वी के बाहर है, पृथ्वी के लगभग है, लगभग यहाँ आसपास है, आसपास से एकदम नीचे। जब मृत्यु आएंगे, काम क्रिया शुरू हो जाएगा, तब यमदूत खींच लेंगे वे शरीर, तो 13 दिन उन्हें छोड़ देंगे, वो ले जाएंगे नहीं, ये नियम है। 13 dagen laat hem gaan, क्योंकि 13 दिन में गरुड़ पुराण में विधि बताया गया, प्रोसेस zijn er जीव को पाप कर्म से मुक्त करने के लिए। दान देना, पिंड दान करना, ब्राह्मण को भोजन देना और भागवत सुनना और हरि नाम जाप करना, उस सब जीव के लिए, क्योंकि जीव के ये पुण्य कर्म जीव को मिले, तो यमदूत उन्हें उस 13 दिन 12 दिन में यमदूत छोड़े कुछ नहीं करेंगे। और काम क्रिया अच्छी तरह से नहीं हुआ तो 13वां दिन यमदूत ऐसा पकड़ेंगे। भगवान कहा है बाद में कि हे गरुड़, जैसे तुम एक सर्प को पकड़ते हो ना, वैसे यमदूत अब पकड़ेंगे इन्हें 13वां दिन, और वहां से तुरंत वो खींचेंगे और धरती पर इसके मुझे प्रमाण नहीं है, ik heb geen bewijs dat ze in de grond gaan, परंतु प्रभुपाद के चित्र में बताया गया, दिखाया गया कि वो धरती में से निकले यमदूत, तो खींचेंगे और उसी में भी ले जाएंगे धरती में, क्योंकि वहां पर मार्ग है, धरती से सब लोक में बना हुआ है, तो वहां अब जाएंगे। तो 18वां दिन, 13 दिन छोड़ देंगे, 5 दिन बाद 18वां दिन वो यमदूत जीव आत्मा को लेकर के यम मार्ग पर पहुंच जाएगा। यम मार्ग यही आसपास है धरती के, शायद कुछ नीचे यहाँ धरती के। तो 18वां दिन वो वहां पर जाएंगे। तो ये deze lichaam, die fijnstoffelijke lichaam, Kasper de Ghost, ओके, वो इतना छोटा रहेंगे। गरुड़ पुराण कहा इतना बड़ा, जैसे अंगूठा, और मैंने एक चित्र में देखा इतना बड़ा, ओके, पकड़ के तो जैसे हवा यानी वायु ओके ढकेलता इधर उधर, उसमें वो उड़ेंगे और यमदूत ओके पकड़ ले रहेंगे और उड़ते जाएंगे। तो जब वहां पहुंचेंगे तो उस शरीर को एक यातना शरीर मिलेगा। यातना शरीर, यातना betekent extreem zwaar lijden, और उस यातना शरीर पर पीड़ा 100 गुना है इस शरीर से। जो ये थप्पड़ मारोगे, जो ये पीड़ा अनुभव होगा ना, तो 100 गुना वो पीड़ा उस शरीर पर के अनुभव होगा। Dus 100 maal is de pijn erger op die lichaam. Daarom heet het यातना शरीर। तो उस शरीर से अब ओके पीड़ा मिलेगा, अब दुख मिलेगा। तो वहां से शुरू होगा, आरंभ होगा यम मार्ग पर। अब जाएंगे सीधा अब यमराज के पास। अभी यमलोक नहीं जाएगा, यमलोक के वर्णन अब हम शुरू करेंगे। अब वहां पर यम मार्ग पर अब मारते 1 साल बीतेगा, इसीलिए 12 बरही तेरी होती ना, श्राद्ध और दान, पिंड दान दिया जाता है। उसके बाद 1 मास के बाद भी कुछ दान दिया जाता है। हर मास पर महागरुड़ पुराण कहते हैं हर मास पर पिंडदान और श्राद्ध दिया जाता है, क्योंकि हर मास पर वो एक नगर में आएगा। तो ओके मिलेगा कुछ आराम। तो हम आज आराम करेंगे तो भूखा प्यासा है, क्योंकि ये शरीर हम जब भोजन करते हैं तो 2 चीज अनुभव होता है। पहला है पेट भर जाता है, और दूसरा है मन के संतुष्टि, संतोष मिलता है मन को भोजन से। परंतु वो जो सूक्ष्म शरीर रहेगा, die fijnstoffelijke lichaam, ओके संतोष चाहिए, संतुष्ट भोजन का। ओके भूख प्यास भी लगता है, परंतु कोई शरीर नहीं है, वो भोजन नहीं करेंगे, परंतु जो भोजन का अनुभव है वो उसे प्राप्त होगा। तो वो मंत्र के द्वारा से जाता है। मंत्र उच्चारण करोगे, विष्णु जाकर के, और मेरे ख्याल से अग्निदेव या पवन देव के देते हैं, या सूर्यदेव को, सूर्यदेव यमराज के पुत्र जो है, और तब सूर्यदेव जाकर के यमराज को देंगे। तो यमराज उन्हें सब दे देंगे, जो पीना, जो खाना, जो दान उसे मिलता है, सब उसे प्राप्त होगा। तो उसका मार्ग थोड़ा से आराम और शांति मिलेगा। और जो ये सब नहीं मानता है ना, तो वो प्रेत रोग का रूप धारण कर लेता है। तो आएंगे अपने परिवार को बहुत सताएंगे। ये हो रहा है इस वक्त,
कोई जब परिवार में मर जाता है तो उसके बाद परिवार के कोई सदस्य भी जल्दी से मर जाएंगे, क्योंकि वो आएंगे, क्योंकि काम के लिए अच्छी तरह से नहीं हुआ और कुछ कोई को लेकर के जाएंगे। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा, वो रोग का रूप धारण करेंगे, दुर्घटना का कारण बनेगा। क्योंकि जब परिवार में कोई गुजर जाते हैं ना, अच्छी तरह से ऊपर काम के लिए करो, और विष्णु से, भगवान कृष्ण से, कृष्ण तुरंत उद्धार कर देंगे। तो वो यम मार्ग चलते चलते बहुत बहुत दुर्गति होता है, मारते पीटते होकर ले जाएंगे, और सूर्य होकर इसे 12 सूर्य उगता है तो उतना गर्मी ऊपर से और मार्ग के नीचे से भी दिखाया जाता है। तो चलेंगे होकर जाते जाते तो 6 मास पर फिर कुछ काम के लिए होता है, पिंडदान श्राद्ध होता है, मिलता है। तो चलते चलते 1 साल जब बीत जाएगा तब वो यमराज के पास पहुंच, एक संयमनी पुरी पहुंचेगा। तो संयमनी पुरी जहां यमराज रहते हैं, तो उमन 3 भवन है। तब पहला भवन जो आएगा तो रोग का भवन है, जिक्त स्वर्गलाइफदान, तो उसे वह पार करेगा। तो संयमनी पुरी के 4 द्वार हैं, 3 द्वार पुण्य आत्मा जहां से आते हैं और 1 द्वार जहां से पापी जाते हैं। तो जो 3 द्वार से पुण्य आत्मा जाते हैं तो वहां धर्मराज खड़े रहते हैं। धर्मराज चतुर्भुज के रूप में रहते हैं, विष्णु के रूप में। तो आपने आसन से उठ कर नमस्कार करते, परंतु वो बहुत पुण्य आत्मा जाते हैं जो दान देते हैं। जो धर्मराज, यमराज एक महाजन है ना, है? तो महाजन अपने भगवान के भक्तों या जो पुण्य आत्मा लोग को बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। तो वहां पर वो जाएंगे, और जो पापी होता है तो वो दक्षिण द्वार से अंदर आएंगे। तो मारते पीटते खींचते तो वहां यमराज जाएंगे सब, पुण्य भी पापी भी। हाँ, पुण्य जो पुण्य जो आत्मा है जो चाहेंगे तो वो जा सकता है, नहीं तो सीधा भी स्वर्ग भी जा सकता है। क्योंकि संयमनी पुरी बहुत जिसे स्वर्ग से भी और ऐश्वर्य वहां है। तब जब जाएंगे पहले रोग का भवन पार करेंगे, तब आएगा चित्रगुप्त का भवन। चित्रगुप्त इज द सेक्रेटारस फॉर यमराज, जो हमारा कर्म लिखता है, जो देखता है। इज द सेक्रेटारस फॉर यमराज, द alles bij houdt op de computer। क्या सोचते हो, क्या खाते हो, क्या करते हो, क्या निंदा किया है या स्तुति किया है, वो अपने आप होता है। तब वो पार करेगा, तब वो जाएंगे। और यमराज कहीं भी jullie pakket even geven als je dat wilt. Jullie, हाँ या ठीक। और यमराज या ठीक बहुत भयंकर दिखते हैं क्या देखो इसमें बताएगा ये यम मार्ग है। यम मार्ग पर कैसे जीव को खींचता ले जाता है। ये 1 साल उन्हें चलना पड़ेगा यम मार्ग पर। सर्कल है ना, या है मुद्दार लोग देखा, देख कैसे पकड़े खींच के यातना शरीर को पकाएंगे, पीटेंगे, काटेंगे, मुदगर से मारेंगे, क्या नहीं क्या करेगा। और खाली यहाँ पर उनका कर्म उसे याद कराएंगे। goed georganiseerd hè? Waarom lachen jullie? Nee, goed georganiseerd. Er zijn 2 dingen. Of Yamraj. Of Yamraj, ja. Nee. Yamraj heeft hier niks mee te maken. Krishna heeft dat Soms toegeweten te staan aan een foto mooien. हाँ, dat is een hele goede wat Prabhupada zegt. Soms is toegewijden maken ook fouten. Maar kondrishti se. Doet hij het expres of onbewust? Dat is mijn vraag weer. Beide. Soms gebeurt het ook beide. Soms onbewust en soms expres. Dat heb ik ook gezien. Kijk, als je toegewijd Soms bent, heb dan ik ben je toegewijd dat wel ik een beetje aan expres het wat lezen doe. wat je moet doen. Ha, En hoe je daar heb je het gelijk, doen, hoor. dan moet je wel een beetje... Ik doe ook dingen, ik ben ook niet perfect, ik doe ook dingen die onbewust gaat. Maar dan heeft Krishna gezegd, als hij onbewust doet en hij chant de heilige namen, dan Paramatma karm se oké muक्त कर देंगे। लात
Komt er iemand aan? Die kinderen, jongens. Maar degene die dat weet en die chant, hij heeft het beloofd. जब तुम गुरु के अपनाओगे तो गुरु से वचन दोगे. वो जो अग्नि का हवन होता है ना, वो दिखाने के लिए नहीं है. वो अग्नि देवता को आवाहन करता है. साक्षी, गुरु परंपरा साक्षी होता है कि ये अब ये पाप कर्म नहीं करेगा. और वचन देंगे कि हाँ ठीक है गुरु महाराज, हम पाप कर्म नहीं, 4 नियम पालन करेंगे, 10 अपराध नहीं करेंगे, वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, ये अपराध नहीं, वो अपराध नहीं करेंगे. अरे पहले तो नमुआ मिले, तब देखो कर बाद वो क्या करता है. तब ओके प्रभु, वो भगवान के सामने कभी नहीं जा पाएगा, कभी नहीं प्रभु, कभी नहीं. ओके, कई जन्म लग जाएंगे और अपने पद पर, भक्ति के पद पर से जब बहुत अत्याचार करेंगे, अपने भक्ति के पद पर से वो गिरना पड़ेगा. ओके, दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के यहां धोखा कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं. वो अपने आप को धोखा देता है. इसे याद कर लेना. हरि नाम तुम्हें भगवत प्राप्ति दे सकता, परंतु हरि नाम तो खून के आंच भी गिरा देगी. याद कर लेना. ये होता है, ये होता है. मैंने बहुत नहीं, इसके बारे में नहीं बोलूंगा. तो वृंदावन में सुअर बन करके खूब आराम कर गो में लेके जो वृंदावन में मरेंगे वो. देखो रात यहाँ देखो, जब जीव आएंगे, ये है गुप्तचर, चित्रगुप्त. अब चित्रगुप्त, सॉरी चित्रगुप्त, हाँ गुप्तचर स्पियोन है. चित्रगुप्त इस बात. स्पियोन ही तो है. मैंने समझ में स्पियोन है, हमें थोड़ी मालूम है. बहुत आगे कर में दिखा. पर यहाँ तो धोती पहनने वाला को ऐसा सिखा रहा है, पैंट पहनने वाला को नहीं. उस जमाने में पेंट नहीं हुआ ना. धोती वाला ये साइड में तो भला देखो, एक गरुड़ पुराण में प्रभु बोले वो खाली धोती वाला. ये ओरिजिनल रूप में जाते हैं ना. पेंट पहन के थोड़ी जाएंगे. ये पैंट और यहाँ पहनते, ये डिस्को वाला मलेच्छा के वस्त्र है. सबको ऐसा नहीं सताते हैं. तो देखो यमराज कितना बड़ा है, कितना ओकर भुजाए है और कितना अस्त्र शस्त्र लिए. यहाँ पर जीव का हिम्मत नहीं पड़ता यमराज को दर्शन करना. यही यमराज नहीं, दिस इज यमराज. अभी धर्मराज देखो है? Prabhu, ik heb nog een vraag, sorry. ठीक. Maar is het in zamana mee, ze zeggen die hondeneters en die helemaal ongelovig zijn. Hun zijn de vers in het wetenschap van hier. Het is wetenschap mee op materiële gebied. Nou, dat is dawai usap kare. Agar आप teken usap iba dawai ontwikkeld kare. Of ze hebben een robot ontwikkeld, dat is ook iets absoluut. Maar dat is op etna ver, Prabhu. Terwijl ze hondenvleeseters zijn, ze zijn allemaal, ze geloven niet in God. Nee, dat is hem. Maar ze zijn zo ver in het wetenschap. प्रभु, धन्वंतरी भगवान के अवतार सुन रहे हैं? जी. Wie was धन्वंतरी भगवान? धन्वंतरी was een deelka die over... Nee, Vishnu zijn incarnatie is dat. Ja, wat was van medicijnen ging. Ja, de medicijn, dat is de oorspronkelijke dokter die gekomen is. Ayurveda en dergelijke heeft hij meegenomen. Dat is de oorspronkelijke medicijn. Krishna komt in de doktervorm. De wet zegt, daar moet je gaan volgen. Maar deze mensen zitten zo te experimenteren met chemicaliën en dergelijke. En men wordt nog zieker als je dat soort dingen doet. Maar ga je volgens de Veda's bestuderen, daarom wil de westerse wetenschap dat niet accepteren. Maar als je ziet, India heeft de beste medicijn van de wereld. Bijna chemicaliën vrij. Daar heb je de beste doktoren van de wereld, omdat ze via Veda werken. En Veda is perfect voor God. Daar hoef je niet te gaan studeren of te gaan onderzoeken. Doe dat wat er gezegd wordt, man. Hoe komt dat er in deze wereld zoveel ziekten zijn gekomen? Omdat men niet volgens van de wetten van de natuur leven. Ze eten allemaal rommel, ze drinken allemaal rommel wat wet verboden heeft. Ja toch? Het had niet gehoeven zo. Je सभी वेद के अनुसार से जीते ना आज तो इतना बीमारी और दुर्गति नहीं होते संसार में. दुखे वो कैसे इतना अच्छा हो गया उनका लाइफ ऐसे पापी लोग. हाँ, ये देखने में है कि बड़ा सुखी से है. Dik Prabhu, kijk. Dik, ik zeg dat tegen mensen hier, zoveel mensen komen als vluchtelingen hier. Maar waarom komen ze hier? Om beter leven.
Maar is dat dan malitsa jihad bij de meeste bakkers? सब है हाँ, oké. हाँ. Ze zijn malitsa aan het kijken in zijn dunia. En ze zijn zo ver, in alles zijn ze ver. Meer dan Indiërs. Meer dan de hele wereld. Chinoa और बकरा zijn de slimste volk ter wereld. Maar उसको कितना मलिक्छा बा और उसको कितना आगे wetenschap में बा. तो कंप्यूटर से सहारा से करेंगे हमें अंदर पुण्य कर्म है, वो सब पहले पुण्य कर्म है ना। हाँ पुण्य कर्म की बात भी होती है पिछले जन्म में अगर इच्छा भी हो गए उन- परंतु प्रभु एक प्रश्न है ये प्रभु जो बताया ना आप सुने ना ये प्रभु प्रश्न किया है कि यहाँ के कितना आगे है कितना सुखी से है अब मैं प्रश्न करूंगा क्या सचमुच के वे सब सुखी है बोलिए ऊपर से तो दिल मिला परंतु भीतर फाके तीन वही हालत हुआ ऊपर से तो बड़ा चिकना दिखा परंतु अंदर में तो कोई नहीं जाने है अंदर में ओकर स्त्री जानी कैसे है कि ना घर में भीतर में है यहाँ सुखी कहीं ना दुखालयम अशाश्वतम भगवान का दुख का लय ऊपर से देखने में मैं तुमसे सहमत हूँ प्रभु एक बार में गाड़ी है बड़ा मकान है ये है तू है तो क्या उसे कोई सुखी से रह सकता नहीं सुखी भगवान बताया हम लोग को कैसे कैसे भगवान कैसे सुखी काल में बताया था बरीरा में भगवान धरती पर क्या किए हैं सबसे ज्यादा नाची से भगवान जितना नाच कृष्ण नाची से कोई नहीं नाचे है कि ना उसे कहते हैं सुखी जीवन जितना गीत भगवान गाए हैं बांसुरी बजाए हैं अपने भक्तों के साथ कोई नहीं कर सकता उसे सुखी जीवन कहा और चैतन्य महाप्रभु इस साबित किए कैसे सुखी बनना ये सब भौतिक दृष्टि से हुआ है materieel gezien zijn ze wel ver maar qua geestelijk बीमारी भी तो उनका जो है हाँ? कोई इलाज नहीं कर सकता। Net wat mevrouw zei, is ook maar niet charge. Maar mogen wij dat ook gebruiken? Ik heb een woord dat je kan met zijn niet eigenlijk liever niet en dat gaat het pijn doen hun. Maar ons beter voelen dan. ja dat is wel zo qua Zo wordt het in het begin Nee, gezegd. maar ik hoor het ook al veel vaker dat mensen Ja. zeggen, maar eigenlijk mag dat niet. nou ja maar Dat ja is ook verkeerde visie van ons geprobeerd, want dat zijn allemaal zielen. ja dus er zijn allemaal zielen maar die wet heeft hen in de categorieën verdeeld. Dus die woord, als het gebruikt wordt, Melitja, weet je precies wat hij mee bedoelt. Je hebt die hondenvleeseter, hoe noem je dat? Chandaal wordt het ook genoemd. Dus dat soort termen gebruiken de wereld om voor ons een verduidelijking te geven. Maar het is niet negatief bedoeld. Het is helemaal niet negatief bedoeld. Maar het is een bepaalde groep. Ja, mensen denken het verkeerd. Het is een bepaalde groep wat weer aangeeft. Je hebt Brahman, Kshatriya, Vaishya en Shudra. Heb je ook. Het is inderdaad, volgens de Vaishnava etiket mogen wij dat woord eigenlijk niet gebruiken. Dus liever niet. Maar ja, अब जो विषय यहाँ है ना, बोलो क्या? यहाँ है धर्मराज, जो पुण्य आत्मा लोग जाते हैं। देख धर्मराज अपने स्थान से उठ जाते हैं और विष्णु का रूप धारण करते हैं। यमराज धर्मराज हाँ, अलग है। हाँ, यमराज और धर्मराज मैं तो एक ही समझ। हाँ एक ही है परंतु विस्तार करते हैं अपने रूप को। हाँ परंतु उसे मोच है देखो विष्णु के मोच देखो ये पुण्य आत्मा करते इतना स्वागत करते हैं वहां सब कुछ वहां है भोज देखे यहाँ भोजन खाना पीना अभी एक चित्र और है वो यहाँ से जो स्वर्ग जाएंगे ना तो सब कुछ खाना पीना अमृत अमृत रास्ते में सब खड़े रहेंगे देवी देवता लोग उनके स्वागत करने के लिए ये सब पुण्य कर्म का प्रभाव है ऐसा इफेक्ट फ्रॉम खुद एक्टिविटी अब ये बहुत है छोड़ दो। तो जो पापी लोग जमराज के पास जाएंगे तो जमराज चित्रगुप्त से सब जान जाएंगे उससे जमराज तो सब कुछ जानते हैं ये परमात्मा से उसे मिलन है परमात्मा सब बताते हैं कि कौन जीव आया है। अब जब जमराज अब जब बोलने के शुरू करेंगे अभी यमलोक नहीं गया अब यमलोक आएगा तो वो जीव जो जमराज का वाणी जो है जो जमराज उच्चारण करेंगे जमराज बहुत डांटेंगे डपटेंगे दांत पीसेंगे और कहा हे पापी तुमने ये किया तुमने वो किया अब तुम ऐसा 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 नरक में जाओगे उसके बाद प्रेत योनि में जाओगे या जानवर के योनि में जाओगे
और जानवर से तुम वो जानवर बनेगे, वो जानवर, तब फिर जाकर के बाद में तुम्हें मनुष्य का शरीर होगा। ये वाणी यमराज का तकदीर है, हमारा प्रारब्ध, किस्मत, नसीब कहते हैं। अभी वो धरती पर आए नहीं और उनका तकदीर लिखा है। भाग्य भाग्य लोथ के साथ करेंगे, दुर्भाग्य नहीं होता। अब आप समझे, भाग्य का खेल बड़ा निराला होता है, परंतु भगवान इतना दयालु है ना, वे आते हैं धरती पर, वे जानते हैं कि यह तकदीर कैसे बदला जाता है, और भगवान करके दिखाए हैं। अगर भगवान 5 पांडवों के साथ नहीं होते तो होता क्या उनके साथ? बोलिए, ये बचपन में मार के खा ले तो कैसे है कि ना? सब राक्षस थे, असुर थे, कली का अनुयायी थे। भगवान बताए हम लोगों को, बचने का रास्ता दिखाए हैं। बच्चों, काल से कैसे बचे? यही है, ये काल है। काल के काम है गला काटना। रक्षा करते हैं भगवान, हम लोग को आकर सिखाते हैं कि कैसे रक्षा होगा। तब यमराज कहेंगे कि तुम ऐसा ऐसा नरक भोगो। अब ठीक, अब थोड़ी सी और क्या इरादा किया है? बोलिए, आगे बढ़ूं या आगे बढ़ो? एक तारीख कॉफी पाउच से मांगे। अच्छा, कुछ टाइम आउट मांगे? तो आपके बाद अब हम लोग जाएंगे। नहीं, हम लोग नहीं कर नहीं, वो रुकना। जब सुन रहे थे, देख रहे हैं भगवान का कितना कृपा है। भगवान बहुत कृपा करते हैं। 13 दिन में भी, 13 दिन में फ्री छोड़ते कि परिवार वाले उसके लिए कुछ करें। तो 1 साल में भी सब जब अक्सर जो क्या बोलते हैं ना पसंद आता है, अगर वो केयर नहीं करेंगे तो तब जाके वो 1 साल बाद छूट सकता है। तब जाके देखो, वही देखा कि कितना कृपा है। अभी भी चांस है, अभी तू यमराज से प्रार्थना कर सकते हो। वही बात है, चांस है अभी कितना। भगवान इतना दयालु है, इतना कृपादालु है, तो कहे कि भगत के अभी कितना दुख रहते हैं। हाँ, ओकर दुख ना है प्रभु, ओकर कल्याण है। ओकर कल्याण है। हाँ प्रभु, जेके दुख लगे है या मैं जेके दुख लगे है, अब बहुत मेरे मत लीजिए। दुख लगे छोड़े, हम लोग की पीड़ा की संसार, हम लोग के इतना पीड़ा दे, इतना कि हम लोग इतना पकाने छोड़ लगे तो और पीड़ा लगे। वही भगवान जाने थे, वो तो दुख दूर करे। और तू चिंता करी, सोची कि भगवान हाँ, कुंती मांगे भगवान से दुख दे, और बहुत क्रास तक बुक प्रभु। Er was nog iets anders. Ik ben hem vergeten. Oh ja, nu weet ik het al. Die अंगूठी दिन dat hij een paard krijgt. वो घोड़ा पाई हुई। या that was not भुला गया। वो एक्चुअली वो हाँ, जो अंगूठी के दान देते हैं खर्चा ना, है उसके लिए। करेक्टली अब ये हमारा कंपार्ट सिटी ऑफ द पार्ट घोड़ा चाहिए, वरना नहीं चलेगा। बताइए जोर। हाँ, अभी बीच में बेबी लेट है फ्रंट क्यों? देखो कितना बढ़िया है। ये बात तो चीज नहीं। प्रोफेसर तो मर प्रभु जी मैं उसी का तो पैसा लेना। बहुत बढ़िया, जरूरी बहुत अच्छा। अब आएगा। बना रहे चीज जानना भी बहुत बढ़िया। एक मरीजा में वो छोड़ के जो लोग क्या होते हैं, अरे जिंदा में पानी नहीं दिया, मर में गंगा भी ले जा रहे हैं। मानो भी बनाना है कि गंगा जी भी करना, वो ये आप दिखा रहे हैं। गरुड़ पुराण में कि बाद में जो क्रियाक्रम वो भी होना चाहिए। लेकिन संक्षिप्त में बोली, छोटी वही देख रहे हैं संक्षिप्त। 8 साधारण बातें हैं। मैंने एक दीप प्रभु जी ये बड़ा अच्छा ना।
नहीं मैंने इतना छोटा भी आपको अच्छा लगा? नहीं, मेरे तो आँख खोल दी मैंने। मेरा सफलता नहीं, कई जगह क्वेश्चन में भी आंसर हो रहा है ना, बैठे बैठे उसका उत्तर मिल रहा है। ये मोड़ कि अब लग रहा है कि 12 वो खुद गरुड़ जी हमारे लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग करते हैं ब्लाइंडली, पता नहीं क्यों करते हैं। इवन ये जमाने के लिए लोग कहते हैं ना किंतु लोग पंडित लोग नहीं बता पाते हैं। जी ये समस्या है। अगर अच्छी तरह से तुम लोग बता सको कि क्यों होता है ना, तो ठीक है। आपने बहुत अच्छा किया गीता जी, सॉरी बढ़िया चीज की। बस आप लोग के आशीर्वाद तो शेयर किया नहीं एक्स बार नहीं दावत है इसके। अब दिखे सच्चे मतलब भागवत है श्लोक। न्योता है दावत नहीं न्योता। दावत हिंदी में नौता को बोलते हैं ना, दावत जब बोलते माने नौता। हम क्या देखें यमराज आएगा तो ऐसे बोलते हैं कि ये दावत नहीं नौता है। इनमें ऐसा है ना नौता है दावत नौता। कैसे हो? बस या मेरे ये